like all of my songs, I can say, most of them at least, that have been appreciated, I've shot while I've been on my period. So that is not excuse anywhere. And when we want things in par, and when we say we want things equally, I feel like we have to push beyond physiological barriers, right? Yeah. So psychological, physiological, all of this is all not an excuse. She thought she ate. Yeah, she ate too. For real. It was so galling to hear as a woman suffering from endometriosis who was never diagnosed until I went down the knife for fibroids. So many Indian women suffer and are either ignored or silenced by the medical professionals themselves. I was prescribed meds to stop bleeding and pain and take as many as I wanted despite the side effects. But not one of the many doctors questioned why I was suffering as I was suffering. She, being an MBBS graduate, is saying this because she still wants her male fan following. And we all saw how people made Deepika the villain just for choosing her own working hours. Sri Leela is privileged enough to make such comments while other women struggle every single day because of such comments made by influential people. That stupid woman really thought she did something there. Women and doctors like her are the reason endometriosis takes an average of 7 to 10 years to get diagnosed. These idiots want their 15 minutes of fame. They don't care who they are pushing under the bus for that. I've come across a lot of insensitive and irresponsible people from her field. I truly feel bad for their patients and people in their lives. What happens when you do MBBS as a correspondence course? You get a degree, but you fail to develop empathy required to be addressed as a doctor. I am more concerned about the opportunities we are going to miss because of the paid leaves over periods. Already ladies have maternity leaves, and because of that, some companies do not prefer hiring women much. Who wants to bet that she paid her way through the medical course? Such a stupid and thoughtless comment. What do these women get out of this? Do they feel good about themselves, thinking, "Yeah, I put down other women today"? Disgusting. Hey everyone, welcome back to Spill Vault. सीधे पॉइंट पर आते हैं। जब एक एक्ट्रेस जो खुद को डॉक्टर भी कहती है ओपनली ये बोलती है कि मैंने पीरियड के दौरान भी शूटिंग की है, सो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो ऑनेस्टली मुझे पर्सनली ये स्टेटमेंट सुनकर थोड़ा अजीब लगा। मतलब मोटिवेशन और इनवैलिडेशन के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है और मुझे समझ नहीं आया कि ये स्टेटमेंट उस लाइन के किस साइड पर खड़ा है, क्योंकि एक तरफ इसे लोग हार्ड वर्क का एग्जाम्पल बता रहे हैं और दूसरी तरफ काफी लोग इसे इनसेंसिटिव कह रहे हैं। और ये डिबेट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी स्टेटमेंट के साथ एक और डिस्कशन वापस सरफेस पर आ गया है उनकी MBBS डिग्री को लेकर। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को थोड़ा कामली स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ना अननेसेसरी हेट, ना ब्लाइंड सपोर्ट, बस एक ऑनेस्ट ब्रेकडाउन। सबसे पहले क्या एक्चुअली हुआ। एक इवेंट के दौरान उन्होंने कैजुअली ये मेंशन किया कि उन्होंने अपने सॉन्ग्स की शूटिंग पीरियड के दौरान भी की है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब सरफेस लेवल पर देखो तो ये एक मोटिवेशनल बात लग सकती है कि पुश योरसेल्फ, लिमिट्स क्रॉस करो, लेकिन प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जब एक पर्सनल एक्सपीरियंस धीरे धीरे यूनिवर्सल स्टेटमेंट जैसा साउंड करने लगता है। और यही हुआ। जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, रिएक्शंस आने शुरू हो गए। कुछ लोग बोले हाँ सही है, स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग बोले ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और ऑनेस्टली मुझे पर्सनली यही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि पीरियड कोई एक यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, मैनेजेबल होता है, लेकिन कुछ केसेस में पेन इतना इंटेंस होता है कि लिटरली बेड से उठना मुश्किल हो जाता है। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये रियल कंडीशन है। मेडिकल टर्म्स में भी इसके नाम है, डिस्मेनोरिया, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस। और इन कंडीशंस में पेन सिर्फ थोड़ा सा क्रैम्प नहीं होता, कभी कभी इतना सीवियर होता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। तो जब कोई ये कहता है कि ये एक्सक्यूज नहीं है, तो नेचुरली बहुत सारे लोग ट्रिगर्ड फील करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक्सक्यूज नहीं रियलिटी है। अब यहाँ एक इमोशनल एंगल भी आता है। जरा इमेजिन करो, आपकी मदर, सिस्टर या कोई क्लोज पर्सन इतने पेन में है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही, और फिर भी वो खुद को पुश कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी ने उसे ये सिखाया है कि ये सब एक्सक्यूज नहीं होते। मुझे पर्सनली ये बहुत कंसर्निंग लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अननोइंगली उस प्रेशर को नॉर्मलाइज कर देते हैं। अब यहाँ एक और लेयर ऐड होती है, और वो है एक्सपेक्टेशन। अगर यही स्टेटमेंट कोई रैंडम सेलिब्रिटी देता तो शायद इतना बड़ा इशू नहीं बनता, लेकिन यहाँ बात एक ऐसे पर्सन की है जो डॉक्टर भी है, और यहीं पर मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते आपको ये तो पता ही होता है कि हर बॉडी अलग होती है, हर पेशेंट का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो फिर एक जनरलाइज स्टेटमेंट क्यों? यही सवाल लोगों के माइंड में आया, और यहीं से बैकलैश स्ट्रॉन्ग हुआ। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी डिस्कशन के बीच
लोगों ने एक और चीज उठानी शुरू कर दी, उनकी MBBS डिग्री। अब मैं यहाँ बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ, जो ऑफिशियली रिपोर्टेड है वो ये है कि उन्होंने अपनी MBBS डिग्री कंप्लीट की है। इसमें कोई कंफर्म फ्रॉड या इलीगल प्रूफ सामने नहीं आया है, लेकिन इंटरनेट पर कुछ सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं और वो सवाल कम्प्लीटली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हैं। जैसे कि MBBS एक बहुत डिमांडिंग कोर्स होता है, लगभग 5.5 साल का, जिसमें स्ट्रिक्ट अटेंडेंस होती है, हॉस्पिटल इंटर्नशिप्स होती हैं, लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं और उसी टाइम फ्रेम में वो लगातार फिल्म्स भी कर रही थी। तो नेचुरली कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये बैलेंस कैसे मैनेज हुआ। कुछ क्लेम्स भी सामने आए कि शायद उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिली हो, लेकिन ये क्लेम्स वेरीफाइड नहीं है, तो इन्हें फैक्ट की तरह प्रेजेंट करना सही नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चंस के रूप में डिस्कस करना गलत करना है भी नहीं है। और मुझे पर्सनली लगता है यही रिस्पॉन्सिबल वे है ऐसे टॉपिक्स को हैंडल करने का। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट एंगल आता है और वो है प्रिविलेज, क्योंकि एक सेलिब्रिटी का वर्किंग एनवायरनमेंट और एक नॉर्मल वर्किंग वुमन का एनवायरनमेंट दोनों कम्प्लीटली अलग होते हैं। एक तरफ फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स, पर्सनल सपोर्ट, रिसोर्सेस और दूसरी तरफ स्ट्रिक्ट ऑफिस रूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लिमिटेड लीव्स। तो जब हम कहते हैं कि मैंने किया तुम भी कर सकते हो, तो शायद हम अननोइंगली इन डिफरेंसेस को इग्नोर कर देते हैं और यही चीज लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगती है। अब मैं यहाँ एक बैलेंस्ड बात भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी सच है कि उनका डेडिकेशन, उनकी मेहनत डेफिनेटली अप्रिशिएट करने लायक है। पीरियड के दौरान भी काम करना इजी नहीं होता, तो अगर उन्होंने किया है दैट शोज डिसिप्लिन। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पर्सनल स्ट्रेंथ को बेंचमार्क बना दिया जाता है। मतलब अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई कर सकता है या करना चाहिए। और ऑनेस्टली मुझे पर्सनली लगता है ये पूरा इश्यू एक्चुअली एक स्टेटमेंट से बड़ा है। ये बात है हम सोसाइटी में किस तरह से पेन को देखते हैं। क्या हम उसे एक्नॉलेज करते हैं या हम एक स्टेटमेंट से बड़ा है उसे इग्नोर करके स्ट्रॉन्ग बनो बोल देते हैं। क्या हम इक्वालिटी के नाम पर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को भी इग्नोर कर देते हैं या उन्हें समझकर अकोमोडेट करते हैं। और मुझे समझ नहीं आया कि हम अभी भी इस बेसिक चीज पर डिबेट क्यों कर रहे हैं। एक और चीज जो मुझे नोटिस हुई वो ये कि कई बार इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन वर्डिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है। हो सकता है उनका इंटेंशन बस ये रहा हो कि मैंने खुद को पुश किया, लेकिन लोगों ने उसे ऐसे सुना जैसे तुम्हें भी करना चाहिए, और यही गैप कंट्रोवर्सी बन जाता है। और शायद यही रीजन है कि ये टॉपिक इतना बड़ा बन गया, क्योंकि ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी स्टेटमेंट नहीं है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम अभी भी विमेन्स हेल्थ को सीरियसली लेने के स्टेज पर पूरी तरह पहुंचे नहीं हैं। तो अब क्वेश्चन ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन ये है कि हम उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या हम दूसरों के एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं। तो अब मैं आपसे जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ मोटिवेशन था या फिर ये सच में इंसेंसिटिव था? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे काम डिटेल ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।